childhood experiences shape not just individuals but entire communities. She has been at the forefront of equipping students and educators with 21st century skills in STEAM and design thinking. I request our principal, Mrs. Gina John, to kindly felicitate the please. Thank you very much. As you all said, for this innovation informative session, without further ado, I invite Madhaman to enlighten us on the topic exploring robotics. A very good evening to all the parents. Good evening. Thank you. Your energy is my energy. So I would actually like you all to participate and have discussions wherever you have any questions, right? So today I'm going to walk you through a small presentation which will help you to understand why should we have something like Kriya in a school and how is it going to help your children. I'll try to make my conversation both in Hindi and English. Unfortunately, I don't know Marathi, otherwise, I would have spoken in Marathi as well. So, just give me a moment, I'll just walk you through the presentation. Okay. Uh, yes. It's a Sunday evening. शाम को अच्छे से चाय पीते हुए टीवी देखते हुए या मूवी जाने के बजाय आप सब यहाँ क्यों हो? किस लिए? बच्चों के लिए. बट क्यों बच्चों के लिए क्यों? क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों से? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए. बट फ्यूचर कैसा है किसी को पता है? किसी को पता नहीं, राइट? आप सब कोई बिजनेस में हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई खुद का बिजनेस चला रहे हो, बट वी ऑल नो दैट job scenarios are changing. Correct? I want you all to take 5 minutes of your time and tell me 5 jobs which were there when you were in college, which are not there anymore. कोई 5 ऐसे जॉब्स आपके ज़माने में थे पर वो जॉब्स अभी नहीं है. Take a little time and I want you all to STD PCOs. Yes, that's one job. Postman. Yes. Think a little more. There are lots of jobs which are not there. Still, मैंने 5 पूछा था, मुझे 2 ही आए हैं. और क्या क्या जॉब्स है? डेटा एंट्री ऑपरेटर्स. आजकल तो कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिखते भी नहीं है. अपने टीचर्स कितने इवॉल्व हुए हैं, करेक्ट? और टीचिंग मेथडोलॉजीज भी कितना इवॉल्व हुए हैं. ट्रेडिशनल टीचर्स अब इतना नहीं है. वी हैव टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन 21st सेंचुरी टीचर्स, राइट? 3 हो गया है और 2 प्रिंटर्स. यस, मे बी इवन ट्रैवल एजेंट्स. आजकल हम लोग तो ज़्यादा एप्स की मदद से ट्रैवल्स बुक करते हैं. आई जस्ट ठीक है, 4 आया है. कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आपको और कोई जॉब्स याद में आए
तो हाथ उठा देना, विल इंक्लूड दैट। अब थोड़ा और जोर लगाइए अपने दिमाग पर एंड think of jobs which are going to be there when your children are in college and life. समझते हैं 15 साल के बाद आपको क्या लगता है कौन कौन से जॉब्स होंगे 15 साल के बाद? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीएज, लॉ, ये रहेंगे? मैकेनिकल इंजीनियर्स, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, ये जॉब्स रहेंगे? लॉयर्स रहेंगे? आपको क्या लगता है कौन कौन से जॉब्स आ सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में आ सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपके एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है। एआई रिलेटेड, यस, एआई रिलेटेड जॉब्स, राइट, बायोटेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एडवांस्ड जॉब्स, यस। आजकल इवन कोडर्स आर नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट, योर रेगुलर आईटी जॉब्स चैट जीपीटी में डालेंगे तो कोड निकल के आता है, राइट? दैट इज अनदर थिंग, योर रेगुलर कंप्यूटर साइंसेस जॉब्स। एंड अच्छा, मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ। पहले आई विल शो वन स्लाइड जहां पहले थे, अब नहीं है एनी ऑफ दीज जॉब्स। अग्री? ग्राफिक डिजाइनर्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी लॉयर्स आर गोइंग टू vanish. I don't know if any lawyers are there in the audience, but legal officials are going to go. Then quality testing engineers are going to be replaced. Then some of you all said IT support engineers, print journalists, digital marketeers, radiology technicians, nuclear power engineers. These are some of the jobs which are going to vanish or already they are vanishing. Now, some of the jobs which are emerging, like AI engineers, machine learning engineers, UI UX developers, autonomous vehicle engineering, then bioinformatics, just like Sir said, then you have 3D printing specialists, a whole plethora of things. इतने ज़्यादा new options of jobs are coming up. है ना? अब इतना जल्दी बदलते हुए सिनेरियो में बच्चों को कैसे तैयार करें? कर सकते हैं मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ये सब पढ़ाकर हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो क्या लगेगा हम लोगों को ज़्यादा बच्चों को ये चेंजिंग सिनेरियोज में फिट होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? What are the things which we as parents, as schools, as teachers should do to ensure that our children are actually prepared for the future? Because future is changing every 5 years. हमारे ज़माने में when we were children, when you were all children, I'm a lot older to you all, most of you all, 15 साल में चेंज होता था। आजकल 5 साल में चेंज हो रहा है। अपने खुद के शहर को देख लीजिए, 5 साल में कितना बदल गया। आगे चलते आई थिंक चेंज विल हैपन एवरी 2 years 3 years। अपने बच्चों में भी कितना चेंज दिख रहा है। सो बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें? वॉट इज इट वी नीड टू डू एक्स्ट्रा टू एंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर ट्रूली प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर? I'll just play a small video. चाहिए आपको?
in school will eventually find themselves working in job hunts that are living in invention. This isn't a tale stemmed from science fiction novel, but a startling reality we must face. The world of work is undergoing a transformation, the likes of which we have never seen before. Jobs of the future are still undergoing value creation, and the onus is upon us to prepare our young ones for this unknown world. The need of the hour is a new approach to education, an approach that doesn't just focus on knowledge, but also the skills that children can apply in the real world. These skills will be their true assets in the future. It's crucial that we arm our children with the skills they need to flourish in the 21st century. This novel approach to education doesn't mean we cast aside academic knowledge. Far from it. It's about infusing our teaching methods with 21st century skills. The method classroom where students learn by doing, a space where they work on projects that solve real world problems, a place where they collaborate and communicate their ideas and where critical and creative thinking is encouraged. As we strive into this brave new world, we need support. Change is never easy, but it's necessary. Remember, we're not just preparing our children for tests, we're preparing them for life. So inspire your children to think outside the box. Nurture their creativity, encourage their curiosity, develop their critical thinking, boost their communication and collaboration skills. Our children are the future, and it's our duty to ensure that they're ready to tackle the challenges. Together, we can shape a future where our children are not just successful, but also happy, fulfilled, and ready to make a positive impact on the world. Because when all is said and done, isn't that what education is really about? So what we need is to empower children to be with the 21st century skills. आप ये पूछ सकते हो कि 21st century होते हैं क्या है? Collaboration, critical thinking, analytical thinking, leadership, global perspectives. Like नासिक में बैठ के हम लोगों को कुछ भी करने से दुनिया के बारे में सोचने का सोच रखना चाहिए. Thinking skills is what we call them. Then leadership, skill sets which will help them irrespective of whichever careers you are going to be. You might ask me, like, आपने तो बोला था कि रोबोटिक्स का सेशन है, एआई का सेशन है, कोडिंग का सेशन है, पर आप तो 21st सेंचुरी के स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो. आपके दिमाग में आया होगा. अब स्किल्स, लेट अस से कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, ये तो बुक्स पढ़कर नहीं आने वाला है, ना ही ये वीडियोस देखकर नहीं आने वाला है. ये आएगा जब बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये जो स्पेस है हम लोगों का रोबोटिक्स लैब जो है, वहाँ बच्चे आएंगे, अकेले काम नहीं करते, वो 3 के ग्रुप में काम करते हैं. एंड दे आर गोइंग टू वर्क विथ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. लाइक एक रोबोटिक्स है, कोडिंग है, एआई है, देन ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, 3D printing, a lot of technologies. The next question is, why so many technologies? Why can't we just stick to some of the few technologies? So, why so much technologies is, we can't deny that we are in a technological era. हम बच्चों से ये नहीं बोल सकते टेक्नोलॉजी से दूर रहो. टेक्नोलॉजी से दूर रखने से वी आर नॉट प्रिपेयरिंग. But what we have to do is make them responsible in users of the technology. वो ये क्लासरूम में एक तो कंस्ट्रक्टिव काम होता है, वो डिस्ट्रक्टिव काम होता है किसी चीज़ में. तो कंस्ट्रक्टिवली कुछ भी यूज़ करना कैसा है, ये सेशंस में सीखते हैं. तो what we have did is, because children have to become change makers. Like जैसे सोशल चेंजेस लाने के लिए जैसे गांधी जी ने कोशिश किया है जितना चेंज लाने के लिए, दे कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स. देन हेल्थ केयर डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ दिस. हमारे बच्चे सिर्फ मैथ, साइंस, सोशल सब पढ़ के इट्स नॉट इनफ एनीमोर. दे हैव टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न्ड इन रियल वर्ल्ड. हमारे टाइम में ना टीचर ने कुछ बोल दिया तो हम लोग सुनते थे, आजकल के बच्चे नहीं सुनते.
ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में ये कैसा मेरे को यूज होगा, ये क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको सबको आते हैं ना। तो जब तक बच्चों को रियल वर्ल्ड कनेक्शंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक बच्चों को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इफ वी वांट टू मेक देम change makers or leaders, we have to ensure that they are developed in all these skill sets. That is why, like मैं बोल रही थी ना कि critical thinking, creative thinking, problem solving, communication, collaboration, all of this अब क्या कैसे करेंगे? Godavari School has collaborated with Kriya Learning, where we have set up a world-class functional maker space or a robotics lab where children come to that space and they're enabled to become critical thinkers, creative designers, and they're able to apply their skills across all subjects. जो क्लासरूम में पढ़ा है, वर्कफोर्स एनर्जी के बारे में क्लासरूम में पढ़ा है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ आकर करते हैं. देन कम्युनिकेशन, आई कैन बी द बेस्ट ऑफ ब्रेन, बट अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. आप सबको मालूम है, बिकॉज आप जिंदगी में ये सब गुजर चुके हो. देन ग्लोबल लेवल पर कैसे compete करें, and they have to fulfill their destiny and desire. So we use robotics, IoT, AI, coding, 3D designing, and engineering design. I think all of y'all went to the robotics lab. We all saw the equipment, right? So what children do is they come to that space every week, 2 periods, 1 block period of 1 hour to 1 hour का period रहता है. And for 8 weeks they will be doing robotics. 8 weeks robotics करने के बाद फिर हम लोग बदल देते हैं, IoT करते हैं. Maybe then we will do coding or 3D printing based on what the school has decided which is best for your students. So in real world सिर्फ कोडिंग सीखने से या रोबोटिक्स सीखने से सॉल्यूशंस नहीं आता है. मुझे ऐप डिज़ाइन करना है तो आई नीड अ नॉलेज अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, आई नीड नॉलेज अबाउट कोडिंग, आई नीड नॉलेज अबाउट डिज़ाइनिंग. तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ ही कुछ आविष्कार हो सकता है. एक चीज़ सीखने से नहीं होता है, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कॉम्बिनेशन में ही करना पड़ेगा. सो कैसे करते हैं, ये स्मॉल वीडियो है, आप देख लीजिए. होपफुली अगले साल आपके बच्चों के साथ भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे. मैं यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ. कोई क्वेश्चंस है तो आप बताइए. एनी क्वेश्चंस? कैसे करेंगे, ये लॉन्ग टर्म पर चलेगा कि नहीं? लिटिल ब्रीफ अबाउट क्रिया लर्निंग. हम लोग 13 साल से यही काम कर रहे हैं. कोई स्कूल्स है जो 13 साल से
हमारा प्रोग्राम चला रहे हैं। पुणे में एक स्कूल है, 8 साल से चला रहे हैं। तो हैदराबाद में 13 साल से बहुत सारे स्कूल्स है। तो ये प्रोग्राम लॉन्ग रनिंग है। ये लॉन्ग रनिंग होना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये तो कोई 2 मिनट नूडल नहीं है। बच्चों को जो घर पर शेयर नहीं करते, यहाँ पर बिठाकर शेयर करना सिखा रहे हैं, तो 1-2 दिन में वो चेंज नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या लीडरशिप कुछ भी एक दिन में नहीं आने वाला है। बच्चे अगर लगातार उसी प्रोसेस में जाएंगे तब चेंज होगा। लाइक आपको बच्चों को ना ब्रश करना सिखाने के लिए 2-3 साल तो मेहनत किया होगा ना। तो ऐसा ही है, मेहनत करते रहना चाहिए, एंड देन द चेंज विल स्टार्ट हैपनिंग। बट वंस द चेंज हैपन्स, इट्स फॉर अ लाइफ टाइम। या एनी क्वेश्चंस? यस मैम। आई कांट हियर यू। सो करिकुलम तो ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक है। हमारे स्कूल में ग्रेड 1 to 6 अभी चल रहा है। अगले साल 7th आएगा तो 7th में, 8th आएगा तो 8th में। तो हम लोगों को 12th तक करिकुलम है। एंड बच्चों को ग्रेड 1 के ग्रेड 2 के बच्चों को रोबोटिक्स की क्या ज़रूरत है, इज अनदर क्वेश्चन यू माइट हैव। इतने छोटे बच्चे क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? ज़रूरत है? बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं। डोंट लुक एट दिस एज अ रोबोटिक्स प्रोग्राम ओनली। ग्रेड 1 के बच्चों को शायद रोबोटिक्स की ज़रूरत नहीं, पर उनको क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सब की ज़रूरत है। हम लोग ये टूल्स सब को माध्यम की तरह यूज़ करते हैं जहाँ बच्चे स्किल्स सीखते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, this is something I'm going to expect from your school next year, ma'am. So जिस schools में काम करते हैं ना, after like 1 year or so, they will have a parent presentation, and these are all, I just picked up one of them. The parents are saying what is the impact they have seen in the children. So next year I want all of you all to come back and give me a feedback so that I can use it in a different school. So this is what I expect from you all. मैम, स्कूल, क्रिया और आपके कोलैबोरेशन के बिना ये होने वाला नहीं। तो तीनों साथ में करेंगे तभी होने वाला है। डू वी हैव अनदर टाइम फॉर अनदर वीडियो? या तो अभी जो वीडियो प्ले करने वाले हैं वो बच्चे जैसे, मतलब 2-3 साल से जैसे काम करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं ये वीडियो में। प्ले कर दीजिए सर, स्टार्ट से कर दीजिए सर।
आपने लास्ट वाला जो इमेज देखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर फॉर लोअर ग्रेड, आई एम अज्यूमिंग, वो ब्रिक्स का मॉड्यूल है। आपने ऊपर देखा होगा, इतना बड़ा ब्रिक टब है। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज नॉट लाइक वो आकर देख के स्टेप्स से देख के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वैसा नहीं है। पहले आते हैं, they will understand what the tool is, then two projects are done with the help of instructions। जैसे आपने, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को एक चैलेंज देते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्शंस नहीं है वहाँ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एंड अकेले का दिमाग नहीं है, दोनों तीनों का साथ वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। जो लास्ट इमेज आपने देखा है, बच्चे एक्चुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो ब्रिक्स कैसे यूज़ करना है ये सब किया है। देन वो रोबो को यूज़ करके कैसे मेज को क्रॉस करना है, कैसे करना है, इज व्हाट दे हैव डन। They are grade 1 and 2 children only. We have even LKG, UKG children also doing all of them. Because we can't underestimate our children. Our children are way beyond our imagination. Any questions? Either I was very clear in my presentation और आपको full confusion है, questions नहीं है, ये दो ही चीज़ें हो सकता है। तो कौन सा चीज़ आपको बिना क्वेश्चंस का कर रहा है, मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज वेरी क्लियर और फुल कंफ्यूजन है। क्लियर? सो वन मोर थिंग, बच्चे आज क्रिया के क्लास में आएंगे तो कल रोबोटिक स्पेशलिस्ट या एआई स्पेशलिस्ट बनेंगे, वो मत देखो आप। मैं क्या कहती हूँ ना, बच्चे आएंगे 6 महीने 7 महीने में, उनका आर दे एबल टू शेयर थिंग्स, आर दे एबल टू क्रिएट, आर दे एबल टू आस्क यू क्वेश्चंस, ये क्यों हो रहा है। आई शेयर वन एग्जाम्पल विच आई गॉट फ्रॉम अ टीचर ऑफ लोअर ग्रेड। लोअर ग्रेड्स में ना वी नो AI इज ड्रिवन बाय डेटा, डेटा इज खाना फॉर AI। वो बट बच्चों को ग्रेड 1 में AI कैसे सिखाएंगे करके बोलते हैं। तो वी डू समथिंग कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चरिंग फॉर लोअर ग्रेड्स। देयर इज वन मॉड्यूल वेयर चिल्ड्रन आर सपोज टू बिल्ड बार ग्राफ्स। जो बार ग्राफ्स हम 7th ग्रेड 8th ग्रेड में सीखते थे, बार ग्राफ्स का क्या है, विद द ब्रिक्स। इन योर क्लासरूम हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक वेनिला आइसक्रीम? टेक अ काउंट। चॉकलेट आइसक्रीम, टेक अ काउंट। देन मे बी बटरस्कॉच, ऐसे 3-4 वेराइटी का। एंड देन ओके, द बार ग्राफ 6 bricks of vanilla ice cream, 8 bricks of chocolate. Now, without knowing that they're doing data, they're actually learning through experience. अब ये हो गया क्लास में, एक बच्चा घर जाके अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आपका कबर्ड खोलो, एंड गिन रहा है। मम्मी ने पूछा कि क्या गिन रहे? मैं ना आपका साड़ीज का एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या एनालिसिस कर रहे हो? आपके पास 8 रेड कलर के साड़ी है, 7 ब्लू कलर के साड़ी। सो mother got really confused. I mean, she called up this teacher and asked, what is it you're teaching that this child is actually doing some analysis at home? Then the teacher said, okay, ये क्लास में हुआ है, इसलिए बच्चे घर जाकर, that is what I want you all to talk to when children come back home. Another thing is, क्लास में ना ऐसे बच्चे 3-3 ग्रुप्स में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। बच्चों को रोल्स दिया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर, मटेरियल मैनेजर, टाइम एग्जीक्यूटर। इवन LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चों को भी बोला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर विल एंश्योर दैट द वर्क इज गोइंग ऑन at the correct pace, everybody is getting a chance to build. Time executor ensures that टाइम पर काम होना भी ज़रूरी है, वो हो रहा है कि नहीं। देन मटेरियल मैनेजर को सामान भी लेके आना पड़ेगा ना,
And आज इस week का project manager will not be project manager next week. That will change. Based on this only, I will also tell you another story about another school where घर में पार्टी चल रहा था. तो बेटी आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गई और बोल रही थी कि मम्मा आप तो एग्जीक्यूटर हो, मैं प्रोजेक्ट, पापा प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं टाइम एग्जीक्यूटर, मटेरियल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टाइम एग्जीक्यूटर. सो मटेरियल मैनेजर पापा है, टाइम एग्जीक्यूटर मैं हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर आप हो. मदर इज अगेन थिंकिंग क्या हो रहा है. She said, पापा तो सारा सामान लेके आने वाले हैं तो वो मटेरियल मैनेजर हुए, आप तो सारा कुछ करने वाले हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हुए. आप दोनों अच्छे से काम कर रहे हो एंड समय पर कर रहे हो कि नहीं, मैं वो ध्यान रखूंगी, तो मैं टाइम मैनेजर हूँ. दिस इज वॉट वी वॉन्ट चिल्ड्रेन to do from, this is what we want them to take it out from this class. Hope I was able to give you an image of what might happen in the classroom. Thank you so much, parents. If you don't have any questions, I'll end my session here. Sir, you have any questions? Thank you very much for enlightening us in this session. Such an great jobs, teaching and learning job in the future. Empower children into the 21st century. How children will gain different skills in this school. Thank you, parents, for joining us today. Giving assistance, asking staff members, are available to guide. Additionally, we have interactive activities such as dodgeball, brickwork, and frisbee challenges on our school ground. Once again, thank you for your presence and support. We look forward to organizing many more such events in the future and hope to see you all soon again. Have a wonderful day. Thank you. Dear parents, thank you so much for coming. It really means a lot. And thank you, ma'am, for a wonderful session and making us understand how the things are going to change in the future. Do you have any questions? If you have any questions, we are there in the campus. There are teachers, the floors, you can ask them for anything guidance. We have many other activities which has been planned for you as well as for the kids. Please make sure that you are enjoying your entire evening with us. And for any queries, we are there. Thank you so much once again. Thank you.